नमस्कार। आज से 37 वर्ष पहले 26 जनवरी 1950 को हम भारतवासियों ने अपने संविधान द्वारा अपने देश को प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया था। आज गणतंत्र दिवस के इस मंगल पर्व पर मैं जसदेव सिंह समस्त दूरदर्शन परिवार और अपने साथी कमेंटेटर कर्नल चितरंजन सावंत और राजीव मेहरोत्रा, इन सब की ओर से अब से कुछ ही देर में यहाँ राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड आरंभ होगी, जिसकी सलामी लेंगे राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह। यहाँ के दृश्य आप तक पहुँचाने के लिए हमने 6 कैमरों की व्यवस्था की है। एक कैमरा तो यहाँ ठीक हमारे बाएं हाथ की तरफ, जो कि राजपथ के दृश्य दिखाएगा परेड के। दूसरा कैमरा है राजपथ पर, जिसके द्वारा आप हमें देख पा रहे हैं। और तीसरा कैमरा राजपथ पर कुछ आगे चले इंडिया गेट की तरफ, तो दाएं हाथ की तरफ जो फोटोग्राफर्स स्टैंड है वहां रखा गया है, जिससे कि आप राजपथ पर जब विजय चौक की तरफ से परेड आ रही होगी उसका दृश्य देख पाएंगे। यहाँ पर पहुंच गए हैं, वो गाड़ी रोकने। 3 कैमरे हमने इंडिया गेट पर रखे हैं, एक इंडिया गेट की छत पर विहंगम दृश्य दिखाने के लिए और 2 नीचे अमर जवान ज्योति पर। और अब प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी अमर जवान ज्योति पर देशवासियों की ओर से पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। The Prime Minister at India Gate for a brief ceremony in homage to the Amar Jawan, the eternal soldier. A pause of solemnity before the pageantry and the splendor to follow, when we remember the gallant officers and men who have laid down their lives that India may be and remain free. The Inter-Services Guard of Honor gives Salami Shastra. And then rests in arms reverse.
Vanguard! South! North! Vanguard! Slavic! Just! Vanguard! Follow! Just! In these moments of gaiety and celebration to follow, that was a solemn pause, a tribute to the sacrifices of those that have ensured the freedom and dignity of the Republic of India. The Prime Minister is accompanied by the newly appointed Defence Minister, Mr. Vishwanath Pratap Singh, the three Chiefs of Staff, Air Chief Marshal De La Fontaine, Admiral R.H. Tehlani, and General K. Sundarji. As the Prime Minister drives down this hallowed stretch of tarmac that is Rajpath, all eyes are now focused on the other end of Rajpath, Rashtrapati Bhavan. This is India Gate, from where you witnessed the Amar Jawan ceremony at the base, and it is the eternal flame that burns atop this prop of a monument. Well, there is that much that is unchanging in the images of this parade for the veterans of the event. There is the changing Delhi skyline and the people of India who come here from every region, every culture, every race, and in a sense to salute themselves. But the images are unchanging, but it is a changing Delhi skyline of encroaching concrete on Luton's lyrical architecture. The early morning mist gives way to morning smog, and this year there will be no flypast. But none of this has dampened the excitement and the air of expectancy here. We are back once again here on Rajpath, a sort of hinge between yesterday, today, and tomorrow. And there is a sea of people awaiting the arrival of the President and waving to the Prime Minister as he drives down towards the saluting dais. This is the center of one of the most beautiful capitals in the world as we await pageantry and color and ceremony. Republic Day is the pageant on Rajpath, but it is also the people who come here, and the Prime Minister waves to them. It is like this every year, a thin trickle around midnight, then a stream, a river, a flood, and then a torrent by the time the sun comes out on Republic Day. The parade remains an evergreen attraction. The Prime Minister is greeted by the Defence Minister, Mr. Vishwanath Pratap Singh. There is the Minister of State for Defence, Mr. Arun Singh, Mr. Shivraj Patil, the three service chiefs, Air Chief Marshal De La Fontaine, Admiral R.H. Tehlani, General K. Sundarji, and the Defence Secretary, Mr. S.K. Bhatnagar. There are a number of other visiting dignitaries here, and these include the chief guests of the parade, the Peruvian President. Mr. Gandhi meets some of the other visiting guests. These are members of the Peruvian delegation. The chief guest of the parade will be the President of Peru, who is expected in a few moments and will drive down Rajpath along with the President.
Another important guest will be the Tanzanian statesman and former President Mr. Julius Nyerere. The Prime Minister greets this elder statesman of Tanzania. Sitting here, there is an enormous feeling of history. And in a sense, in this image in front of us, an elder statesman and a young Prime Minister meet. It was on the 26th of January 1930 that Jawaharlal Nehru, as the President of the Indian National Congress, raised the Indian tricolour in Lahore. That journey to independence has been fraught with dangers, struggles and sacrifices. The triumphs and failures are sadly often a matter of which end of the political spectrum you belong, but few challenge the triumph of the fundamental ideas of the Republic, whose foundation we today celebrate. That is the former British Prime Minister, Mr. Edward Heath, that Mr. Gandhi spoke to. Despite the expansion of Doordarshan and the reach of these words and images, Rajpath remains a magnet that has drawn people in their tens of thousands here and hundreds of thousands before television sets, before the parade and the pageant, which is an affirmation for the people of India of their commitment to India. The images are familiar but powerful. They encapsulate an idea, package an identity. For some 2 shining hours, we salute, we celebrate, we rejoice in India. The Vice President, Mr. R. Venkataraman, is greeted by the Defence Minister, Mr. Vishwanath Pratap Singh, and the Prime Minister. Now in slow procession will arrive the important guests who will be attending this parade. Fresh green paint has been slapped on the tiered stands that flank Rajpath on the Vista lawns, and at the edge of the green grass there are berries with wind-flushed children giving them a ringside seat. There will be 10,000 children from different schools of Delhi who will sing the grand finale to the Republic Day parade. This is the focal point of the parade, and more than 10,000 personnel of the armed forces, paramilitary units, police, NCC, school children, folk dancers, and other voluntary organizations will march by the President, who will sit on this platform, not only in his capacity as the head of the Republic, but as the Supreme Commander of the Armed Forces. As the Supreme Commander, not only will he take the salute of the defense personnel under his command, but in a sense, will salute his men. And in this motorcade that just drove down Rajpath is the wife of the President and his daughter, being escorted by Mrs. Sonia Gandhi.
Amidst the gaiety to follow, there will be another moment of solemnity. The Ashok Chakra, one of the nation's highest awards for bravery this year, goes posthumously to a woman, perhaps the first woman, Nirja Mishra, for her supreme sacrifice during the Pan American hijack in Karachi. The award will be received by her mother. And as the motorcade and the President's bodyguard march down Rajpath, this hallowed stretch of tarmac, it's over to my colleague Jasdev Singh. राष्ट्रपति पढ़ा रहे हैं सलामी मंच की ओर। आगे हैं राष्ट्रपति अंगरक्षक दल। सेना की सबसे पुरानी और वरिष्ठ टुकड़ी 1773 में इसका गठन वाराणसी में उस समय के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने गवर्नर्स ट्रूप ऑफ मुगल्स के नाम से किया था। 1850 में इसका नाम पड़ गया हिज एक्सीलेंसी द वायसरायज बॉडीगार्ड्स और 1946 में गवर्नर जनरल बॉडीगार्ड्स और 1950 में जब देश गणतंत्र बना उस समय ये राष्ट्रपति अंगरक्षक या प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स। राष्ट्रपति अंगरक्षक दल के कमांडेंट कर्नल H.S. सोढी नेतृत्व करते हुए और अब राष्ट्रपति जी की सवारी धीरे धीरे बढ़ रही है सलामी मंच की ओर। और एक गणमान्य अतिथि हैं हमारे बीच में आज। 2 डिवीजन हैं राष्ट्रपति अंगरक्षकों के, जिसमें 16 घुड़सवार जवान। सबसे आगे कर्नल सोढी, एक और सेकंड इन कमांड मेजर P.S. बेदी। प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी के अगवानी के लिए राष्ट्रपति जी के साथ हमारे देश के मेहमान पेरू के राष्ट्रपति महामहिम श्री एलन गार्सिया पेरेज भी पधारे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अगवानी की राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की। उसके पश्चात उन्होंने पेरू के राष्ट्रपति महामहिम श्री एलन गार्सिया पेरेज की अगवानी की और अब प्रधानमंत्री दोनों राष्ट्रपतियों का स्वागत करा उनका परिचय करवा रहे हैं रक्षा मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से। उनके बाद रक्षा राज्य मंत्रियों श्री अरुण सिंह और श्री शिवराज पाटिल, फिर सेना अध्यक्ष जनरल के सुंदर जी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल तहलियानी और फिर वायुसेना अध्यक्ष de la Fontaine, एयर चीफ मार्शल de la Fontaine और फिर रक्षा सचिव श्री भटनागर। राष्ट्रपति अपने आसन की ओर पधार रहे हैं। पेरू के राष्ट्रपति के साथ अंगरक्षक दल राष्ट्रीय सलामी देगा। सामने वाला बैंड सेना सेवा कोर और सैनिक पुलिस कोर का राष्ट्रीय गीत की धुन बजाएगा और यहाँ राजपथ पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा उठेगा। आज का पावन पर्व संकल्प का दिन, संकल्प देश को सुख समृद्धि की मंजिल की तरफ ले जाने का। सलामी देंगे। राष्ट्र सलूट, वतन देख।
21 तोपों की सलामी दागी जा रही है। तोपें गरज गरज कर भारतीय गणतंत्र का जैसे जय जयकार कर रही है। अब राष्ट्रपति श्रीमती नीरजा मिश्रा को मरणोपरांत वीरता और बहादुरी के लिए सम्मानित करेंगे। उनके माता श्रीमती रमा भनोट राष्ट्रपति से अशोक चक्र प्राप्त करेंगी। राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो अब अलंकरण समारोह आरंभ किया जाए। अति असाधारण वीरता, साहस और कर्तव्य निष्ठा के लिए अशोक चक्र श्रीमती नीरजा मिश्रा, सुपुत्री श्री हरीश भनोट, मरणोपरांत। तेईस वर्षीय श्रीमती नीरजा मिश्रा, सुपुत्री श्री हरीश भनोट 5 सितंबर 1986 को पैन अमेरिकन एयरवेज के विमान की बंबई से कराची होते हुए न्यूयॉर्क उड़ान में वरिष्ठ विमान पर्सर थी। कराची हवाई अड्डे पर 4 सशस्त्र विमान अपहरणकर्ता विमान की ओर लपके। असाधारण सूझबूझ का परिचय देते हुए श्रीमती नीरजा मिश्रा उसी क्षण हाईजैक कहकर चिल्लाईं, जिससे विमान चालक दल चौकस हो गया और तुरंत विमान से बाहर चला गया ताकि उनसे बलपूर्वक विमान न उड़वाया जा सके। अब श्रीमती नीरजा मिश्रा ने स्थिति स्वयं संभाली और भयभीत यात्रियों को सांत्वना दी। उन्होंने बहुत ही कुशलता और दक्षता से क्रूर अपहरणकर्ताओं को खून खराबा करने के पागलपन से परे रखा। अचानक विमान की बिजली चली गई। स्थिति का लाभ उठाते हुए उन्होंने आपातकालीन द्वार से बहुत से यात्रियों को बच निकलने में सहायता दी। एक अपहरणकर्ता ने उन्हें पीछे से पकड़कर गोली मार दी। संकट में फंसे यात्रियों के प्रति उनकी निष्ठा मानवीयता का एक अमर और अनुपम उदाहरण है। यात्रियों का जीवन बचाते हुए अपने जीवन का बलिदान देकर श्रीमती नीरजा मिश्रा ने बहुत विषम परिस्थितियों में असाधारण वीरता का परिचय दिया। स्वर्गीय श्रीमती नीरजा मिश्रा की माता श्रीमती रमा भनोट। महामहिम, आपका आदेश हो तो अलंकरण समारोह समाप्त किया जाए। नीरजा मिश्रा ने जो कर्तव्य परायणता, जो साहस और जो दिलेरी दिखाई, हर देशवासी को उस पर नाज है। नीरजा जैसे बलिदानी कभी मरते नहीं। वो तो कीर्ति की ऐसी प्रकाश किरण छोड़ जाते हैं जो सदा रोशन रहती है। राजपथ पर गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा हो गई है। राजपथ पर जिस पर मार्च करते हुए हमारे सैनिक राष्ट्रपति को सलामी देंगे, जिस पर दर्शन होंगे हमारी युवा शक्ति के और अपनी प्रगति, विकास और वैभवशाली कला और संस्कृति के। परेड का नेतृत्व कर रहे हैं दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल JS जामवाल। और परेड के बारे में आपको बताएंगे मेरे साथी कर्नल चित्तरंजन सामंत। मेजर जनरल JS जामवाल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली क्षेत्र, इस बार तीसरी बार कमांड कर रहे हैं। भारत सरकार ने आज जनरल जामवाल को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया है। स्वतंत्र भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र। इसके विजेता कर्नल होशियार सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा और मेजर RR राणे। अशोक चक्र अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, कर्नल जसराम सिंह, ऑनरेरी कैप्टन सुंदर सिंह, हवलदार छेरिंग मुतुक, सर्वश्री हुकुम सिंह। और स्वतंत्रता से पहले जिन लोगों को पुरस्कार मिले, सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार था विक्टोरिया क्रॉस। सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन अगन सिंह राय, ज्ञान सिंह और भंडारी राम। ढलती उम्र के पुराने योद्धा आज भी प्रेरणा के स्रोत। दूसरे महायुद्ध में
भारतीय सेनाओं ने बर्मा के मुहिम में और यूरोप में अनेक विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त किए थे। सेना में न केवल जवान बल्कि घोड़े भी कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। 61 कैवेलरी का दस्ता, रणबांकुरे घुड़सवार और बहुत ही चुस्त घोड़े। भारतीय सेना का एकमात्र रिसाला कमान कर रहे मेजर RS कल्हा। 1982 में एशियाई खेलों में इन घुड़सवारों ने स्वर्ण पदक भी जीते थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अब संसार में कहीं भी अश्वारोही सैनिक लाम पर नहीं जाते। राजकीय समारोहों पर इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत ही सजीले जवान और सजीले घोड़े। और अब सलामी मंच के करीब पहुंच रहा है और अब राजीव नेहरू। Column. This is the mechanized column with the T-55 tanks forming the first contingent. Contingent commander is Major Naveen Sodhi. Manning these tanks are the personnel of the cavalry raised in January 1957. They have won 4 battle honors. The tank is of Russian origin, fitted with 105mm guns. It has a crew of 4 each and a maximum speed of about 50 kilometers per hour. The turrets dip and salute as they pass the saluting base. The Vijayantha tank. The Supreme Commander takes a salute. These tanks are manufactured indigenously at the Heavy Vehicles Factory Avadi in Tamil Nadu. They are medium tanks with a cruising range of 300 kilometers and a maximum speed of 48 kilometers per hour. The contingent commander, Major Mir Ahmad Shah. These tanks are manned by personnel of the Armoured Regiment, which was raised in December 1984. The contingent approaching the saluting base and moving towards the cameras now is a 105mm Indian field gun. Major M.L. Mahajan leads the contingent. Now inside the saluting base of 105 mm Indian field gun. Major M.L. Mahajan is leading The field guns have the capability to fire at both high and low angles. 70 kilometers and are manufactured in the Indian Ordnance Factory. The
guns have a range of about 17 kilometers. They are manufactured at the Indian ordnance factories. Manning these guns are the soldiers of a field regiment raised in 1963. A remarkable feature of much of the armament on display this morning is the extent of the indigenization of the Indian defense industry, a key component in India's ability to maintain a policy of genuine non-alignment. 130 mm medium gun. The contingent commander is Major Ram Prasad. These guns have a range of 28 kilometers. 130 millimeter guns, 130 millimeter medium guns. The contingent commander, Major Ram Prasad. 130 मिलीमीटर तोपों का दस्ता, इसका नेतृत्व कर रहे हैं मेजर राम प्रसाद। ये तोपें 28 किलोमीटर की दूरी तक मारती हैं। ये दुश्मन के टैंकों के जवाब को तोड़ने और उनकी The guns are manned by the personnel of a medium regiment raised in 1984. साल 1984 में एक मध्यम दर्जे की रेजिमेंट बनाई गई थी, जिसके कारण इन तोपों पर तैनात The guns have a range of 28 kilometers. They are very effective against enemy tank concentrations and for counter-bombardment on enemy guns with a devastating firepower. Multi-barrel rocket launcher. The contingent commander, Major B.N. Sharma. In front of the Philippine base. The contingent commander is Major C.N. The weapon has a range of 20.4 kilometers and forms the most effective and devastating firepower. Manning these weapons are the troops of a rocket regiment. The unit was raised in 1984. Behind them, you can see three types of armored personnel carriers. The first type is the soft armored personnel carrier. This is an amphibious combat vehicle. It is a 4-axle vehicle with a fully armored body providing protection against small arms, missiles from mortars and... Passing the saluting base now are three types of armored personnel carrier. The first type is the Scots Armored Personnel Carrier. This is an amphibious combat vehicle. It has 14.5mm and 7.62mm machine guns in armament infantry. It is a 4-axle vehicle with a fully armored body providing protection against small arms splinters from mortars and artillery cells. Major V.S. Sando is leading the contingent. The BTR Armored Personnel Carrier, under the command of Captain J.K. Sharma, and manning these carriers are the personnel of a battalion of the Mechanized Infantry raised in 1949. And on their heels passed the Topaz Armored Personnel Carriers, and as the combat team approached the saluting base, it's Colonel Chittaranjan Salak. ये लड़ाकू दल या योधी दल संगठित चल संघर्ष दल का भाग है, जिसे इंटीग्रेटेड मोबाइल वॉरफेयर यूनिट कहते हैं। ये युद्ध में एक नई तरह की टैक्टिक्स है।
सबसे पहले इसमें T-72 टैंक, लड़ाकू दल सेना की सबसे छोटी मिलीजुली टुकड़ी होती है जिसे लड़ाई के मैदान में उतारा जाता है। इसमें मुख्य रूप से ये T-72 टैंक और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के दस्ते हैं। साथ ही साथ इनको स्वचालित तोपखाना, इंजीनियर, हवाई सुरक्षा तोप, मिसाइल और हेलीकॉप्टर भी दिए जाते हैं। T-72 टैंक रात और दिन में लगातार इकट्ठा काम कर सकते हैं और इन्हें रात में तोपों से शत्रु पर प्रहार करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। दुश्मन के लिए ये दैत्य है। और ये ICV BMP जिसमें कि मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री चलती है, ये टैंक के साथ रहते हैं। टैंक 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तेज चलते हैं, तो पैदल सेना उनका साथ रखने के लिए इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल या ICV जिसे कहते हैं, उसमें साथ साथ चलती है। ICV के अंदर ही जवानों की आक्रामक शक्ति और शस्त्रों का पूरा फायदा उठाया जा सकता है। और हाँ, इस दल का एक और भी पक्ष है, वो हवा का, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद में। दल के बीचों बीच हवाई सुरक्षा प्रदान करने के लिए शिल्का तोपें भी रखते हैं और ऐसे तोपखाने जो दुश्मन का सर नीचे रख सकें। अभी इस लड़ाकू दल या योधी दल का मुख्यालय साथ गया और अब 130 मिलीमीटर की कैटेबल तोपें। मुख्यालय में फिर टैंक, क्योंकि मुख्यालय से ही सारी बातों का संचालन होता है कि किस तरफ से युद्ध होगा, शत्रु पर दाहिने से या बाएं से आक्रमण करेंगे। तो इस योधी दल मुख्यालय की सुरक्षा के लिए T-72 टैंक साथ रखे जाते हैं और हवाई सुरक्षा के लिए इनमें छोटी विमान भेदी तोपें भी लगी हैं। साथ ही साथ अभी टैंक के बाद फिर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, क्योंकि 14 T-72 टैंकों के साथ, जिसमें एक स्क्वाड्रन आर्मर का है, एक कंपनी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के साथ होती है और इनके पास भी टैंक भेदी मिसाइल लगी रहती है। राष्ट्रपति हमारी सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का एक और दस्ता, इसमें 130 मिलीमीटर तोप जो लगी है, इसकी मार की सीमा 28 किलोमीटर है। शत्रु के टैंक दल और उनके टैंकों के जमाव को तोड़ने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा पक्ष हवा का, ये चीता हेलीकॉप्टर स्काउट के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो दूर से पहले जाकर के देखते हैं कि शत्रु का जमाव कहाँ हो रहा है, उनके हथियार कहाँ हैं। और उसके साथ ही पीछे ये चेतक हेलीकॉप्टर और चीता हेलीकॉप्टर इस समय भारतीय सेना के अभिन्न अंग हैं और हमारी सशस्त्र सेना के तोपखाने के रेजिमेंट के चालक ही इन्हें चलाते हैं। दूर से ही जब ये शत्रु के जमाव को देख लेते हैं तो वायरलेस टेलीफोनी पर टैंक को और अपने पीछे चल रहे तोपखाने को ये बताते हैं कि शत्रु कहाँ है, ताकि उन पर दूर से ही 28 किलोमीटर दूर से प्रहार किया जा सकता है। चेतक हेलीकॉप्टर बहुत ही क्लोज सपोर्ट देता है और ये अभी टैंक गए जिनसे कि हम पुल बना सकते हैं, टूटी फूटी ज़मीनें जो पास में होती हैं।
आर्मर और इन्फेंट्री का ये अभूतपूर्व सहयोग है। स्वचालित अपने आप चलने वाली तोपें जिन्हें टो करके या खींच के नहीं ले जाते हैं, और 130 मिलीमीटर ये सेल्फ प्रोपेल्ड एसपी माने सेल्फ प्रोपेल्ड कैटापल्ट है। ये तोपें दुश्मन का मनोबल तोड़ती हैं और लड़ाकू दल दुश्मन द्वारा खड़ी की गई रुकावटों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है। आज की आधुनिक लड़ाई में हम प्रक्षेपास्त्र को नहीं भूल सकते हैं। ये मिसाइलें ज़मीन से हवा में मार करने वाली हैं और शत्रु के विमान उनसे अपने इस समन्वित योद्धा दल को बहुत ही व्यापक सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये अत्यंत ही समन्वित दल है। इसके साथ बख्तरबंद गाड़ियाँ, तोपखाने, माइंस को तोड़ने वाली चीज़ें और हवा से सुरक्षा प्रदान करने वाले हेलीकॉप्टर। इनके कमांडर थे मेजर अजीत सिंह भिंडर और अब जसदेव सिंह। और ये हैं भावी नागरिक हमारे देश के, जिनकी निगाहें इस समय दाईं तरफ हैं, जहां कुछ ही देर में परेड का दूसरा भाग आरंभ होगा। भारत देश के बच्चे, हमारे बच्चे, ये सब बच्चे मिलकर बाद में समूह गान प्रस्तुत करेंगे। और अब राजपथ पर सलामी मंच की तरफ आ रहे हैं वे जवान जिनके बहादुरी ने हमारी सेना के शानदार इतिहास में वक्त पड़ने पर हर बार अपनी शौर्य गाथाओं से नए नए पन्ने जोड़े हैं। ये हैं मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप का दस्ता। कमान सेकंड लेफ्टिनेंट के.सी. पंचनाथन के हाथ में है। सन 1780 में स्थापित कितने ही युद्ध सम्मान इन्होंने जीते, 2 महावीर चक्र समेत। इन जवानों की दिलेरी का जीता जागता सबूत। खेलों में भी इन्होंने 6 अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किए। और अब बैंड मद्रास रेजिमेंटल सेंटर और बंगाल इंजीनियर्स का थल सेनाध्यक्ष धुन बजाता हुआ। मद्रास रेजिमेंट की टुकड़ी कैप्टन एन के पाराशर के नेतृत्व में 1758 तक इसका इतिहास जाता है। वक्त पड़ने पर हमारे ये सैनिक ऐसी चट्टान बन जाते हैं जिस पर शत्रु का कोई हमला कारगर नहीं हो सकता। देश को इन पर नाज है। मिलते हुए कदम, कंधे तक उठते हुए हाथ, इनके चेहरों पर संकल्प और दृढ़ निश्चय। राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट की टुकड़ी कमान कैप्टन समुद्र सिंह संगवान के हाथ में है। 212 वर्ष पहले इस रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। कितने ही युद्धों में इन रणबांकुरों ने जौहर दिखाए। 6 विक्टोरिया क्रॉस, 1 परमवीर चक्र, 6 महावीर चक्र, 33 वीर चक्र और कितने ही शौर्य पुरस्कार जीते हैं राजपुताना राइफल्स के इन जवानों ने। वातावरण में रसमाधुर्य घोलता ये बैंड है राजपुताना राइफल्स और आर्टिलरी सेंटर का। धुन गंगोत्री, रस घोलती सी जैसे प्रेम गदगद गंगा की कल कल करती लहरों से मधुर गान करती है। और इस बैंड के ठीक पीछे वीरता की ना जाने कितनी परंपराएं स्थापित करने वाले राजपूत रेजिमेंट के जवान थे। कमान मेजर एस.एस. यादव के हाथ में है। पहली बटालियन राजपूत रेजिमेंट की 1778 में गठित हुई थी।
और तब से भारतीय सेना द्वारा लड़ी गई सभी लड़ाइयों में इन्होंने भाग लिया है। एक विक्टोरिया क्रॉस, एक परमवीर चक्र और 56 वीर चक्र, कुल मिलाकर 78 युद्ध सम्मान राजपूत रेजिमेंट के जवानों ने प्राप्त किए हैं। और अब सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है ये दस्ता जाट रेजिमेंट का कैप्टन रविंद्र सिंह की कमान में, जिसके पीछे 190 वर्ष पुराना इतिहास है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद में कितने ही युद्धों में इन्होंने भाग लिया। जाट रेजिमेंट के जवानों के पराक्रम और वीरता के कारनामों ने हमारी सेना की कीर्ति पताका को ऊंचे से ऊंचे शिखर पर फहराया है। एक विक्टोरिया क्रॉस, 2 जॉर्ज क्रॉस, 7 महावीर चक्र, 32 वीर चक्र और कितने ही वीरता सम्मान, और उस पर खेलों में 2 अर्जुन पुरस्कार भी। और ये बैंड है पंजाब रेजिमेंटल सेंटर और पायनियर कोर प्रशिक्षण केंद्र का। धुन है प्रतिज्ञा, भारतीय सैनिक के दृढ़ निश्चय और संकल्प की प्रतीक मानी उसे। और अब सिख रेजिमेंट, कमान मेजर GS शेरगिल के हाथ में। राष्ट्रपति को उन्होंने निगाहें दाहिनी तरफ करके सलामी दी। 1846 में सिख रेजिमेंट का गठन किया गया। स्वतंत्रता से पहले और उसके बाद कितनी ही लड़ाइयों में इन्होंने हिस्सा लिया। प्राणों की बाजी लगाकर इन बहादुरों ने अपना और वतन का नाम रोशन किया। इन वीरों ने देश के यश को हिमालय से भी ऊंचा उठाया। 2 परमवीर चक्र, 14 महावीर चक्र, 56 वीर चक्र और कितने ही युद्ध सम्मान सिख रेजिमेंट ने जीते। और अब आपके सामने है कुमाऊं रेजिमेंट, बहादुर कुमाऊनी, कैप्टन RS कुशवाहा के नेतृत्व में। ये भी बहुत पुरानी सेना की टुकड़ी है। 200 से भी अधिक वर्ष हुए इस रेजिमेंट की जब स्थापना हुई थी। सबसे पहला परमवीर चक्र इसी सेना के मेजर सोमनाथ को मरणोपरांत प्रदान किया गया। उनके अलावा 2 जॉर्ज क्रॉस, 2 परमवीर चक्र, 9 महावीर चक्र और 67 वीर चक्र। बैंड है कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर और जम्मू कश्मीर राइफल्स का। जीवन की मुस्कानें बिखेरता धुन हंसते लुटाई। जम्मू कश्मीर राइफल्स, कमांडर हैं इस दस्ते के कैप्टन पवित्र गोपाल कृष्ण। 166 पुरानी कहानी जम्मू कश्मीर राइफल्स की अब तक कितनी ही बहादुरी की कथाएं लिखी हैं देश और विदेशों में। इन जवानों ने 6 महावीर चक्र, 32 वीर चक्र और कितने ही सम्मान प्राप्त किए हैं। जम्मू कश्मीर राइफल्स का दस्ता है ये। और अब बहादुर गुरखा, कमान कैप्टन संजीव कुमार के हाथ में। 1824 में स्थापित, वीरता जिनका धर्म है और देश के लिए जिंदगी की परवाह न करना कर्तव्य, ऐसे बहादुर हैं ये गुरखा। 2 वीर चक्र, 1 परमवीर चक्र, 6 महावीर चक्र और कितने ही शौर्य सम्मान इस बात का प्रमाण है कि इन्होंने रण क्षेत्र में हमेशा आगे कदम बढ़ाए हैं। बैंड 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और महार रेजिमेंटल सेंटर है। धुन अपनी वीरता के अनुरूप सिंहगढ़। सिंहगढ़ की धुन पर मार्च करते हुए अब आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का दस्ता राष्ट्रपति जी को सलामी दे रहा है। इनके चेहरों को देखें, दृढ़ निश्चय, संकल्प, एक इरादा, देश को जब जरूरत हो या आगे। इस आर्मी ऑर्डिनेंस कोर रेजिमेंट का गठन 1775 में किया गया था। और अब माइक्रोफोन पर कर्नल सामंत। प्रादेशिक सेना या टेरिटोरियल आर्मी के अफसर और जवान सामान्य नागरिक हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, दफ्तर के बाबू हैं, रेल विभाग में अधिकारी हैं। टीए यानी टेरिटोरियल आर्मी प्रशिक्षण लेकर सीमा के सजग प्रहरी हैं। 102 इन्फेंट्री बटालियन टीए के इस दस्ते की कमान लेफ्टिनेंट विनोद जोशी। DME सेंटर और ग्रेनेडियर्स का बैंड, धुन शेरे जवान।
तृष्णा 36 फीट लंबी फाइबर ग्लास की पाल नौका। तृष्णा यानी प्यास। इस नौका में भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स के 10 अफसरान ने समुद्र मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने की प्यास बुझाई। 28 सितंबर 1985 को बंबई से चले और 15.5 महीने बाद 10 जनवरी 1987 को वहीं स्वदेश वापस। लेफ्टिनेंट कर्नल के.एस. राव और उनके 6 स्थायी साथी मेजर A.K. सिंह, कैप्टन शेखर और कैप्टन भारती। प्रबंधक कर्नल चौधरी, जिन्हें आज अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। 60 फीट की वेल मछली के साथ सागर में हिलोरे लेते हुए हमारी तृष्णा कभी तेज झंझावात से चुनौती लेती थी तो कभी अन्य मछलियों से, लेकिन ये साहसी नाविक अडिग रहे। मॉरिशस, मेडागास्कर, ब्राजील, पनामा, ऑकलैंड, जकार्ता, कोलंबो आदि स्थानों पर हमारी ये तृष्णा गई। बहुत ही सफल ऐतिहासिक यात्रा कोर ऑफ इंजीनियर्स भारतीय थल सेना की अपनी प्यारी नौका तृष्णा। Now you can see the sentinel of the sea, and then we got along the coastline of India. और दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर सामने से आगे बढ़ते हुए और नौसेना की घाटियां सलामी मंच के करीब पहुंचते हुए Associate with the Indian Navy. The first float is the INS Virat. This was formerly HMS Hermes and the first aircraft carrier to have 3 major post-war inventions: the angle flight deck, the steam catapult, and the projector landing site. The ship is fitted with a ski ramp which enables a Sea Harrier V STOL fighter aircraft to operate to its maximum payload and range. In addition to a squadron of Sea Harriers, the Virat will carry a squadron of Sea King ASW and Commando helicopters. The aircraft carrier is fitted with a wide array of radar, communications and electronic equipment, as well as anti-aircraft weapons and missiles, which enable the ship and her aircraft to perform over an area of more than 1.5 lakh square nautical miles. In addition to a squadron